Hello, students. Today's topic of the chapter number 5 is to study about natural gas, which is a very important fossil fuel, and it is a gaseous fuel. It also appears deep inside the earth between two layers of non porous, or we can say impervious rocks. This gas is a mixture of lower hydrocarbon, means it is a not a single gas, it is a mixture of lower hydrocarbons, means less number of uh, carbon compounds or gaseous compounds. So let's study about the mainly consist of this mixture. So let's see the composition of natural gas. This gas is found above the petroleum deposits, and it is mainly consist of methane gas. When you see the composition, methane is 95%, which is single carbon with hydrogen. The formula is CH4. Then ethane gas is also present in this mixture, that is about 4%. And two more gases, propane and butane, are also present here in small proportion. So it is about 0 to 1%. There are three forms of this natural gas can be formed when it is compressed, that is known as compressed natural gas. And one more form of this natural gas is PNG, when it is supplied with the help of pipelines, that is called PNG. When this gas is converted into liquid form with the high pressure and with low temperature, it is called liquefied natural gas. This gas is also considered as an ideal fuel. इस गैस को आइडियल फ्यूल भी बोला जाता है बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम विदाउट लिविंग एनी ऐश. जब ये जलती है गैस तो पूरी कंप्लीट कंबशन में जलती है, कोई ऐश इसके रेसिड्यू में नहीं बचता. एंड इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इट इज़ कंसिडर्ड अबाउट 55 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम से हमें 55,000 जूल एनर्जी जो है वो मिलती है. तो इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड not polluting the environment. That's why it is considered as ideal fuel. Some uses of natural gases are also there. We will study about them later on, but very important thing is there. When this gas is burned as a fuel, so you can see in this equation, this natural gas is burned in the presence of air that forms carbon dioxide and water molecule and give us energy. But when this gas is strongly heated in the absence of air, means no oxygen is there, that time it is cracked. It is decomposes. It is decomposes in the two parts. First part is the carbon particles and the second part is the gaseous form of hydrogen. And the further one, their uses of carbon particles, these carbon powder is used in the rubber industries, and hydrogen gas is used to formation of ammonia with nitrogen. So that is also important use of the natural gas. Natural gas has been found in our India, Tripura, Rajasthan, Maharashtra. These are the states where the natural gas is present under the earth crust, and Krishna Godavari Delta. Let's see the uses of natural gas. Now see the uses of natural gas in your book on page number 81.
It is stored under high pressure and form is compressed natural gas. It is used as fuel in motor cars, buses, trucks. Don't you think it is a best, because generally in the car and buses the use of diesel, petrol, but it is used as a economic value as well as it is less polluting gas. That's why it is used nowadays in the motor vehicles. CNG is also used for power generation. मीन्स ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी बहुत हेल्पफुल है, सो ये पावर जनरेशन में काम आती है. अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस गैस इज इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल्स टू द होम्स एंड फैक्ट्रीज. इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के थ्रू एक नेटवर्क बना के डायरेक्टली गैस वेल से जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रही हैं हम फैक्ट्रीज़ में और होम्स में इसकी सप्लाई कर सकते हैं टू बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग एज ए कुकिंग पर्पज़. घरों में भी ये डोमेस्टिक लेवल पर सप्लाई किया जा सकता है, तो उस टाइम पर इसको PNG कहा जाता है, पाइपलाइन नेचुरल गैस. Such a network of these pipelines exist in गुजरात, बड़ोदरा जगह है वहाँ पे है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द दिल्ली, वहाँ पर भी कुछ जगह पर ये PNG की फॉर्म में यूज़ में आ रहा है. नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, मीन्स रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. कई केमिकल्स बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम आता है. नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक. जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो कार्बन ब्लैक होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर द रबर इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, टायर्स के अंदर, जिससे कि उसको स्ट्रेंथनिंग एजेंट बोला जाता है, यानी उसके टायर्स को ये रबर टायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कार्बन. Natural gas is also used to obtain hydrogen gas on industrial scale. जब इसको क्रैक करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करके तो ये अमोनिया फॉर्मेशन में काम आता है, एंड दिस गैस इज डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. So we have studied all these three types of exhaustible resources. हमने तीन तरह के एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो लेट्स कंपेयर देम. आइए हम इनको अब कंपैरिजन करते हैं ऑन सम फॉलोइंग पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ नॉट मेंशन हियर, कोल जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, एंड नेचुरल गैस इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ इन अ गैसियस फॉर्म. द सोर्सेज आर कॉमन. इनके जो सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस, इनका जो सोर्स है वो कॉमन है. कोल, ट्रीज एंड प्लांट्स. ज़्यादातर ट्रीज और प्लांट्स बरीड अंडर द surface of the earth crust, and it is believed that millions of years ago ये plants जो थे ये convert हो गए slowly they converted into the coal, and that process was carbonization in the presence of the anaerobic bacteria. उसी तरह से पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं. सी सरफेस पर हमने देखा, सी के जो लेवल पे द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे लिव्ड इन द सी, दे वर डाइड एंड देयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ सी. वो धीरे धीरे उनकी सी के बॉटम में सेटल्ड हो गया, एंड सून दे वर कवर्ड विद द क्ले एंड सैंड. उस पर मिट्टी और क्ले जो था वो आ गया, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उसमें ये कन्वर्ट हो गए इन द एब्सेंस ऑफ एयर इनटू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम. एंड देन कम्स टू द नेचुरल गैस. इसके लिए भी सोर्सेज जो हैं वो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पर भी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड हुए और दे कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म्स. अब इनकी जो प्रेजेंस है वो देखिए, जो कोल है वो तो हमारे को सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ में मिलता है,
जब हम उसको माइनिंग करते हैं तो हमें दिखता है। पेट्रोलियम के लिए आपने देखा है कि वहाँ पर ड्रिलिंग रिग्स यूज़ किए जाते हैं, मशीन्स यूज़ की जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, और वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। और जस्ट अबाउ इट, उसके ठीक ऊपर की तरफ कुछ गैसेस मिलती है, वो नेचुरल गैस की प्रेजेंस है। कंडीशंस के बेस पर भी हम इनको पढ़ सकते हैं। दे रिक्वायर्ड सेम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कोल। पेट्रोलियम के लिए भी जो कंडीशंस हैं वो भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, एंड कंडीशन फॉर द नेचुरल गैस इज हाई टेम्परेचर कंपेयर टू पेट्रोलियम एंड हाई प्रेशर कंपेयर टू पेट्रोलियम, दैट्स वाई इट इज़ इन टू द गैसियस फॉर्म। और यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये थ्री जो स्टेट्स ऑफ हमने देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मिलते हैं।